I hope audibility and visibility is clear, doctors. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the plant physiology, we have started, in fact, we are done with the plant-water relationship. I already told you that as far as plant physiology is concerned, there is not exactly an evolutionary train as we discussed in human physiology. But yes, there is an evolutionary train that we already learned in that paragraph, which is compromise between transpiration and photosynthesis. Photosynthesis. Yes, that was Prajakbhai, that was the C3 and C4 plants. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो गितेश, ईशान, इशिता, भाग्यश्री, अरुणिता, अर्जुन, हमें ये समझना पड़ेगा कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड उसमें भी था C3 to C4, बट ऐसा कोई हर फिजियोलॉजी में ट्रेंड नहीं। सो हमने ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे प्लांट move up into the transport up into the up to the height of like bamboo trees, और कैसे शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, कैसे गटेशन होता है, कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, व्हाट नॉट, एवरीथिंग कि हाउ द मटेरियल विल बी ट्रांसपोर्टेड, व्हाट विल बी द मैकेनिक्स, व्हाट विल बी द पोटेंशियल्स, व्हाट विल बी द पाथ लाइक सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, how the short distance will be covered, how the long distance will be covered, what will be the mass flow hypothesis, how the food will transport in bidirectional movement, and how the water will transport in the unidirectional movement. So many things we learned, but all with the concern with the plant and water relationship. But this mineral nutrition, because as far as long distance transport of water is concerned, definitely xylem will not carry alone water at one time. Definitely if transpiration pull is there, negative pressure is there, negative hydrostatic pressure is there, so xylem will prefer कि why not I should move along with the minerals, so that xylem will carry the water along with the minerals, and that will be called as sap. That will not be called as food, that will be called as sap. So the topic I should cover, that is ascent of sap. Ascent of sap. Sap means that minerals which are present in that water which is transporting from root to leaves. So this is called ascent of sap. So while during the ascent of sap is taking place due to pull force or due to transpiration pull force, due to the cohesive adhesive binding, and due to a creation of DPD or suction pressure. So when minerals will move, those minerals are what? They are whether required essentially or they required non-essentially, or they can be present in more amount in plants, but they need in which form. So what all these things regarding minerals we need to discuss in this chapter, mineral and nutrition. So सबसे पहले उन्होंने बताया कि methods to study the mineral requirement of plant. Plant को mineral की requirement है, आप समझोगे कैसे? यार प्लांट को मिनरल की कोई रिक्वायरमेंट है, आप लीव्स को देखकर तो नहीं जान सकते कि सॉइल में से वो एक्स ले रहा है कि वाई ले रहा है कि जेड ले रहा है. नो वन कैन प्रेडिक्ट इवन. अच्छा, मुझे पता भी कैसे लगेगा? एक काम ये हो सकता है कि मैं जब मिट्टी में उसे लगाऊं, जब मैं पौधे को उसमें प्लांट करूं, तब मैं उस मिट्टी को पहले एक एक्स एलिमेंट निकाल के देखूं, फिर कोई रिएक्शन हो रही है क्या, फिर देखो, फिर वाई एलिमेंट निकाल के देखूं, या एक्स फ्री सॉइल में लगाऊं, फिर वाई फ्री सॉइल में लगाऊं, तो मुझे पता लगेगा ना कि एक्स रिक्वायर्ड है या वाई रिक्वायर्ड है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बेटर है ना यार कि सॉइल में इतना काम करने के बजाय व्हाई नॉट आई शुड प्रिफर द हाइड्रोपोनिक्स. मैं कुछ सॉल्यूशंस बना लूं, एक सॉल्यूशन बना लूं x + y + z, दूसरा सॉल्यूशन बना लूं a + b + c, तीसरा बना लूं lmn. So different if nutrient solution I can prepare and I can plant a small plant in that one, so it is always better ना, क्योंकि सॉल्यूशन में मैं इजीली ऐड कर पाऊंगा, सॉल्यूशन में से मैं इजीली निकाल पाऊंगा. सो ऐसी एक टेक्निक डेवलप की गई, दैट इज सॉइल फ्री कल्चर और सॉइल फ्री प्लांटेशन, एंड व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोपोनिक्स. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. जब मैं सॉइल फ्री एनवायरनमेंट में से करता हूं तो सेंटेंस लिखा गया, द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड्स इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट्स इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन. These methods require purified water and mineral nutrient salts. Can you explain why this is so essential? भाई मिनरल न्यूट्रिएंट उसको सॉइल से मिल रहे थे, पानी तो वो ले रहा था. आप कहोगे सर सॉइल से क्या ही मिल रहा था, सॉइल सिर्फ होल्ड कर रही थी. नो,
सॉइल सिर्फ होल्ड नहीं कर रही थी, सॉइल उसे एक बैक्टीरियल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करा रही थी जो फिक्सेशन में मदद कर सकता था। इसलिए आपको वो बैक्टीरिया भी शायद डालना पड़ सकता है, इसलिए आपको वो मिनरल भी डालने पड़ सकते हैं जो किसी तरह से सॉइल से बाइंड फॉर्म में पड़े हुए थे। इसीलिए उसे कहा गया कि न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, प्लस उसके बीच में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी ट्रैप्ड थे, तो आपको एरेशन भी देना पड़ेगा। ये सब इसकी ग्रोथ की प्रॉपर रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो अभी इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पर ना आ जाऊं, बट स्टिल पेज नंबर 195 हाईलाइट करेंगे। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। सीधे सीधे स्टेटमेंट आता है, सीधा सीधा सवाल आता है, हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? सिंपल है, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। Sir, what is lettuce? लेट्यूस को हिंदी में क्या कहते हैं या मराठी में क्या कहते हैं? सीड में, जस्ट मिनट, लेट्यूस एनीवन? पालक. Sir, नहीं, पालक एग्जैक्टली नहीं होता लेट्यूस, बट पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हो सकती हैं, जिसमें वो फिर कैबेज का भी पत्ता हो सकता है, वो मूली का भी पत्ता हो सकता है, दिस ऑल आर टुगेदर कॉल्ड एज लेट्यूस। प्राजक्त, okay, sir. Means basically leafy vegetables. एक और लाइन उसमें हाईलाइट करना चाहिए, इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। क्योंकि ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? आपने सॉइल फ्री एनवायरनमेंट कर रखा है, तो उसके पहले ऑक्सीजन वहीं पर तो लॉक्ड पड़ी थी वाटर के बीच, तो वो आपको एरेटेड करना पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर पुअरली एरेटेड? यदि आपने एरेशन ही नहीं दिया तो रूट को ऑक्सीजन मिलने का चांस कहां है? बिकॉज रूट डजंट हैव एनी स्टोमेटा, रूट के पास कोई स्टोमेटा नहीं है, रूट के पास कोई लेंटिसल्स नहीं है, रूट के पास कोई क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन नहीं, तो रूट करेगी क्या? वो जो सॉइल में पड़ा हुआ था ऑक्सीजन बाइंडेड फॉर्म में, वहीं से वो लेता रहे। तो यदि आपने एरेटेड नहीं किया तो दैट मे डाई। ओके, इसमें कुछ भी मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। इज दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes. एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स समझाने वाला पैराग्राफ तीसरा पैराग्राफ है, बट यहां पर भी देखते हैं कुछ हाईलाइट करने वाला पैराग्राफ, विच में डायरेक्टली आस्क्ड इन द नीट। More than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. More than 60 elements of the 105 discovered so far. अब 105 से ज्यादा भी हो गए। अपने लिए डेटा यही काम करेगा कि 105 में 60 तो अभी कम से कम हर प्लांट में देखे गए हैं। ओके, some plant species accumulate selenium, some other golds, while some plants growing near nuclear test sites take up radioactive strontium. किस किस प्लांट में क्या देखा गया? सेलेनियम देखा गया, गोल्ड देखा गया, रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम देखा गया। There are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration. The question is whether all the diverse mineral elements present in a plant, for example, gold and selenium, are really necessary for plant? How do we decide that what is essential for the plant and what is not? उन्होंने क्वेश्चन पर छोड़ दिया और यहां पर समझने वाली बात यह आती है, लिखना कुछ नहीं, सब दिमाग को ओपन रखना है, विंग्स को ओपन रखना है, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर तुरंत अपलोड नहीं करता हूं, सो यू मस्ट बी अवेयर कि आप सुन रहे हैं प्रॉपर। अजित अहिरे, अंकुर, सुन रहे हैं आप? अर्जुन, Yes, sir. आयशा, शुभम रोथे, Yes, sir. संजना सिंदरकर, सानिका कासार, प्रथमेश, पलक, Yes, sir. Yes, sir. यश, मृदुला, विधि, तन्मय, Yes, sir. वैष्णवी, उत्कर्षा, सुन रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. काव्य, Yes, sir. तो मतलब यह है बच्चों कि मेरा कंसर्न कि कोई एलिमेंट एसेंशियल है ये कैसे पता लगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, फनी सा, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कह दिया डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर पैठणे, डॉक्टर पलक संधान कि मैंने और डॉक्टर भावना सिंह मैडम ने कुछ 10, 12, 15 दिन की या महीने भर का ब्रेक ले लिया। बात को समझना,
डॉक्टर पाठक एंड डॉक्टर भावना सिंह मैडम ने कुछ 15-20 दिन का, महीने भर का ब्रेक ले लिया टीचिंग से, और एक XYZ आकर आपको बायो पढ़ाने लगा। यदि आप उस बायो को पढ़ाकर अच्छा स्कोर करने लगे या आपको मजा आने लगा, तो मैं और डॉक्टर भावना सिंह आर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल? नॉन यार तुमने हमको तो नॉन एसेंशियल बना दिया दोस्तों। और आपके केस में एसेंशियल, बाकी देखेंगे। अच्छा, ये क्या खाएगा मेरी तरफ से, बोल। चलिए कोई बात नहीं, जस्ट फॉर जोकिंग। सो मैंने आपसे कहा कि यदि कोई XYZ मिनरल को आप देख रहे हैं कि उसका रिप्लेसमेंट यदि है, XYZ के केस में यदि कोई रिप्लेसमेंट है, तो यदि वो रिप्लेस हो गया और अभी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंटिन्यूइंग एट द सेम पेस एंड विद द सेम मेटाबॉलिज्म and no problem or no deficiency at all is there or seen, so definitely that material is non-essential. But if the deficiency or unavailability of that material is, I should say, terminating the metabolism or affecting the growth, retardation of growth, then definitely that material is essential. Yes or no? यस सर। हम लोगों को BSc में पढ़ाएगा तो हमें टीचर बताती थी कि एक दिन ऐसा इमेजिन करो कि मम्मी 10-15 दिन के लिए कहीं घूमने चली गई और मौसी या दीदी के हवाले घर कर दिया, और फिर भी यदि आपका खाना पीना बराबर चल रहा है, कोई समस्या नहीं हो रही है, टिफिन बराबर पैक हो रहा है, कपड़े बराबर प्रेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर उस केस में मम्मी हमारे लिए नॉन एसेंशियल होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यस और नो? मतलब if routine work is continuing, if metabolism is performing, if reproduction is continuing, growth is proper, then the material which is replaced, X is replaced by Y, then X is non-essential. But if X is replaced by Y and growth is retarded, then definitely X is the essential mineral element. Do you understand the concept? Yes, sir. यस सर। मतलब कुल जमा वो जो एसेंशियल कह रहा है वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। यदि वो रिप्लेसेबल है तो वो एसेंशियल कभी हो ही नहीं सकता। यस और नो? यस सर। तो किसी भी एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया फॉर essentiality. Criteria for essentiality. Number 1. Anyone can tell me from NCERT? So the element must be And absolutely in the absence of the element, the plant cannot complete its life cycle. Needed for optimal growth. तो needed नहीं करता मैं, support. Supportive for. क्राइटेरिया क्या है कि वो मिनरल एलिमेंट कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, सपोर्टिव फॉर व्हाट? रिप्रोडक्शन। नंबर 3, आई शुड से रिप्रोडक्शन हो गया तो उसमें कंप्लीशन वाली बात आ गई, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। थर्ड वन इज नॉट रिप्लेसेबल, must not be replaceable. Must not be replaceable. Number 4, what is given in NCERT? Supportive for metabolism. Directly, not supportive, madam, directly involved in metabolism. Agree? Yes. नेक्स्ट पेज पर आते हैं। Based upon the above criteria, only few elements have been found to be absolutely essential. कुछ थोड़ा सा लर्निंग पार्ट रहेगा जिसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा और आपके लिए छोड़ दूंगा वो, क्योंकि इतना ज्यादा लर्निंग पार्ट अपन नहीं कर सकते ना। तो दो बेसिक मिनरल न्यूट्रिशन की दो बेसिक क्राइटेरिया, विच वन? Macronutrients and micronutrients. ठीक है, ऐसा ही अपन ने बायोमोलिक्यूल में भी देखा था, मैक्रो एंड माइक्रो, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसा ही मैंने डाइजेशन के केस में प्रसन्ना मैडम बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट
जो डायरेक्ट एनर्जी रिलीज करते थे वो कौन थे? मैक्रो। जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे वो कौन से थे? माइक्रो। बट वो डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी थी। ह्यूमन के केस में मैक्रो और माइक्रो था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्लांट के केस में भी हम मैक्रो और माइक्रो देखेंगे। तो मैक्रो प्लांट के केस में जनरली वो होते हैं that are present in plantation large amounts, present in plant tissue in large amount, present in tissue in large amount. तो डेफिनेटली ये कैसे होंगे? प्रेजेंट इन टिश्यू इन Small amount. Small amount. तो वहां अमाउंट को स्मॉल और लार्ज करने के बजाय उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया। लार्ज अमाउंट का क्या दिया उन्होंने? 10 मिलीमोल पर केजी। इज इट? Yes, sir. Yes. और ऑफ ड्राई मैटर, ऑफ ड्राई मैटर, उसका जितना भी ड्राई मैटर मतलब वाटर को निकालने के बाद जो पानी बचती है, तो 1 किलो में 10 मिलीमोल यदि वो होगा तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा। हाँ मुक्ति बोलो, यू रेज योर हैंड। Sir, why that element should not be replaceable? जोर से बोलिए। Sir, I asked why that element should not be replaceable. शुड नॉट बी रिप्लेसेबल मतलब आप ये कह रहे हैं कि एसेंशियल एलिमेंट व्हाई इट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल, इज इट? Yes, sir. Sir, NCERT में ऐसा लिखा है कि that element should not be replaceable. नहीं नहीं, कोई भी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कौन सा एलिमेंट, कौन सा मिनरल की बात कर रहा हूं मुक्ति? Essential. एसेंशियल। भाई यदि वो एसेंशियल तो रिप्लेसेबल कैसे होगा यार? एसेंशियल है तो इतना इंपॉर्टेंट होगा ना कि उसको किसी और, उसकी भरपाई किसी और से नहीं की जा सकती, इसलिए तो वो एसेंशियल। Yes, sir. समझा? हाँ सर, समझ गया. लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, प्लीज नोट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल एनीवन कैन टेल मी फ्रॉम द एनसीईआरटी? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. पोटेशियम भी उसी में है क्या? Yes, sir. पोटेशियम, अच्छा, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 4 5 6 7 8 9 9 है। Yes. And then micronutrient. What are the micronutrient? Sodium, silicon, cobalt, selenium. Iron, Iron. madam. Manganese, copper, Iron, manganese, molybdenum, zinc, boron, chlorine, nickel. Nickel, Zinc, boron, nickel, molybdenum और Chlorine. क्लोरीन Nickel. निकेल। परफेक्ट। चलिए, क्या बोले? निकेल बोले, नितिन बोले? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है भाई? nickel, Nic. हाँ, मतलब ये तो यार मेरे को तो मैक्रो में रहने दो यार। क्या डॉक्टर्स? Yes, sir. So this is 9 plus 8. How much? 17. 7. और इसके अलावा एडिशनल उन्होंने लिखे हैं इन एडिशन टू दिस 7 एसेंशियल एलिमेंट्स। ये 7 कौन से हुए? एसेंशियल एलिमेंट्स, बराबर। और इसके बाद उन्होंने लिखा है देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स, ये एसेंशियल हो गए, प्लस बेनिफिशियल कौन से हैं? बेनिफिशियल कौन से हैं? दीज आर Sodium, सोडियम, silicon, cobalt, selenium, सोडियम, सिलिकॉन और बोलो cobalt, Cobalt. selenium. कोबाल्ट, सेलेनियम और बोलो बस। Yes. और यहां पर सवाल बनता है दे आर रिक्वायर्ड बाय विच प्लांट्स? Higher plant. Higher plant. अंडरस्टूड? प्लीज नोट।
डॉक्टर मृदुला गायधेनी, मुक्ता दवालकर, आर यू देयर? Yes, sir. एक ही आवाज Yes, आई। sir. बहुत बढ़िया। दिशा सूर्यवंशी, आर यू देयर डॉक्टर? Yes, sir. चलिए, उसके बाद बच्चों एक और दिया गया आपको 4 ब्रॉड कैटेगरीज फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स। Sir, just a second. आप बोलो। सर एक मिनट, थोड़ा सा नोट करना रह गया है। यस यस, नो प्रॉब्लम। प्लीज नोट। Noted, Dr. MJ, Yes, sir. Thank you, sir. गुंजन पाटिल, आदित्य शिवाले, एबल, आर्या, वैष्णवी, तन्वेश, स्वराज, Yes, sir. Yes, sir. Yes. आनंदी, श्रुति, श्रेया, सुहानी। Yes. Yes, sir. आवाज देते रहो भैया। सम्यक, श्रेया, सायन, समिधा, प्रसन्ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर ईशिता गाड़े, आर यू देयर? Yes, sir. परफेक्ट। 4 कैटेगरीज बच्चों दी गई हैं, ब्रॉड कैटेगरीज, एंड द वन इज कंपोनेंट मॉलिक्यूल, कंपोनेंट बाय मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे जो उसका कॉम्पोजिशन बनाते हैं। नंबर 2 इज एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, एनर्जी रिलेटेड। नंबर 3 इज कंपोनेंट, मतलब ये स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया ना, स्ट्रक्चरल। दूसरा हो गया एनर्जी रिलेटेड। तीसरा हो गया एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। और चौथा हो गया दोस्तों मेंटेन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मेंटेन ऑस्मो। ये तो एक झटके में आंसर दे दोगे। कोई ऐसा एलिमेंट बताओगे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है? एनीवन? अरे क्या ही कर रहे हो, याद आया? अरे याद आया? Yes, sir. Stomatal opening and closing, that is controlled by maintenance of osmotic potential, turgor pressure. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज की यदि मैं बात करूं, कुंजल मंत्री, आर यू देयर? Yes, sir. सो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, CHON. These are the component of structural component और बायोमॉलिक्यूल्स। परफेक्ट। जो उस किसी भी प्लांट के केस में प्लांट टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाते हो वो 4, भाई ये तो है ही मैक्रो एंड माइक्रो। Those needed in, those are present in more amount are macro, the present in small amount are micro। वो 9 और 8 17 तो हो गए, उसके अलावा कुछ बेनिफिशियल्स भी, वो 4, that doesn't matter। बात ये हो रही है कि वो जो कैटेगरीज है उस बेस पे बनाई जा रही है कि क्या वो उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, क्या उसका मेन एनर्जी कंपोनेंट है, क्या वो उसका एक्टिवेटर और इनहिबिटर है, या क्या वो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने वाला एलिमेंट है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी बनाएगी। पहली आपकी हो गई बायोमॉलिक्यूल, दैट इज कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल पार्ट। द सेकेंड वन इज एनर्जी रिलेटेड, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है और फॉस्फोरस जो है एटीपी, एडीपी, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कौन होता है? फॉस्फोरस। थर्ड आपको दिया गया है इनहिबिटर और एक्टिवेटर, और इसमें एक नहीं बहुत सारे दिए गए हैं। मैग्नीज दिया गया है, जिंक दिया गया है, कॉपर दिया गया है, मैग्नीज, जिंक और कॉपर। ये अभी आप पढ़ेंगे जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, तब तीनों ही सब्सटेंस, तीनों ही एलिमेंट की अपने को जरूरत पड़ेगी। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल मैंने बता दिया, दैट इज पोटेशियम। अंडरस्टूड?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल ये है बच्चों के इंडिविजुअल एलिमेंट। अब इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए क्या करूं मैं? आपको स्क्रीन शेयर करके मैं बताऊं कि जो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा गया है, आपको क्या करना है वो भी बता दूं। आपको जो करना है वो भी बता दूं एक असाइनमेंट के तौर पर। बढ़िया से रजिस्टर को बीच का पेज ओपन कीजिएगा। रजिस्टर का बीच का पेज ओपन करना मतलब ऐसा रजिस्टर खोल लीजिएगा तो 2 पेज कवर हो जाएंगे एक साथ, और उसको ताकि समय पड़ने पर लास्ट मोमेंट पर 2023 में एग्जाम के कुछ महीना 2 महीना पहले बीच से उखाड़ लिया जाएगा और उसको पेस्ट कर दिया जाएगा, सो दैट रोज वो दिखता है, बिकॉज इट इज अ लर्निंग पार्ट। कंसेप्चुअल बहुत नहीं था, तो इसमें लर्निंग पार्ट में आपको करना क्या है? द फर्स्ट कॉलम विल बी सीरियल नंबर एज यूजुअल, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हो जाए, ये आपका हो गया सीरियल नंबर। दूसरा आपको बहुत छोटा कॉलम लगेगा जिसमें आप लिखेंगे एलिमेंट, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, जितने भी होते हैं मतलब। उसके बाद आप उसके लिखने वाले हैं सोर्स। ये सोर्स मिलता कहां से? सोर्स मतलब प्लांट के लिए सोर्स देख लिया, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लांट के लिए तो सोर्स पूरी सॉइल ही है, मत लिखिए, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए मैं एकदम से ह्यूमन का आपको बता दिया, क्योंकि ह्यूमन के लिए पता लगाना पड़ेगा कि भाई सोर्स पालक है कि मेथी है कि दूध है कि अंडा है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेंगे उसके फंक्शंस। फंक्शन में थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, थोड़ा ज्यादा मतलब अच्छा खासा ज्यादा लग सकता है फंक्शन के केस में। और फिर आपको लिखनी है डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी एक तरफ लिखनी है और एक तरफ लिखनी है टॉक्सिसिटी। डिफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। डिफिशिएंसी में लिखना है आपको जितना भी डिफिशिएंट है, और टॉक्सिक में लिखना है जितना भी एक्सेस। भाई ऐसा भी हो सकता है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये टेबल समझा क्या आपको? सीरियल नंबर, एलिमेंट, फंक्शन, डिफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ लिख दिया मैंने रिमार्क, लास्ट में लिख दिया रिमार्क, यहाँ लिख दिया डेफिशिएंसी और यहाँ लिख दिया टॉक्सिसिटी। अब एक कंसेप्ट बता देता हूँ, बाकी तो आप लोगों को करना है, कंसेप्ट बता देता हूँ। अब कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसा लगता है यूजुअली कि भाई डेफिशिएंसी या तो किसी की डेफिशिएंसी होगी या तो टॉक्सिसिटी होगी, लेकिन कई दफे ऐसा नहीं होता। वो भी आपको आपके ही एग्जांपल से देकर मैं समझाऊंगा। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसा कि एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी एक दिया गया है, if plant is absorbing more magnesium, if plant is absorbing or root is uptaking more magnesium, so uptake of magnesium is compete with iron. तो या तो वो मैग्नीशियम एब्जॉर्ब सही से कर पाएगा या तो आयरन एब्जॉर्ब से। और यदि मैग्नीशियम ज्यादा हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट, बात को समझना, बाय डिफॉल्ट सिंस iron and magnesium is competing for uptaking, so by default if plant root is uptaking more magnesium, so plant may lead to deficiency of iron. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे क्योंकि आवाज नहीं आई। रिया मैडम मुझे आवाज नहीं आई। Yes, रिया sir. जो मैंने कहा भाई if plant is competing for the two mineral elements like iron and magnesium for the uptaking by roots, so these two elements are competing with each other. So if by any means, by any reason, if plant root is uptaking more magnesium, so toxicity of magnesium is the result of deficiency of iron. Do you understand? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Basically मैंने ऐसा कहना चाहिए, deficiency of iron is due to more or toxicity of magnesium. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसा ही होता है स्पंदन मैडम, ऐसा ही होता है जब स्थिति ऐसी हो जाए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अब आप अपने आप को कंसीडर करो प्लांट की तरह, तो यदि आप किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगे तो स्पंदन मैडम दूसरा क्या हो जाएगा? उसमें कम मार्क्स आएंगे। उसमें कम मार्क्स आएंगे क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि दीज आर कंपीटिंग सब्जेक्ट्स। पी कह रहा है कि मुझे बी और सी से कम मत आंको, मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट। सी कह रहा है कि मुझे पी और बी से कम मत आंको, मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ। और बी कह रहा है कि मैं तो सबसे ज्यादा हूँ, 360 मार्क्स वाला हूं, मुझे तो कम लो ही मत।
तो आप किसी एक को ज्यादा पढ़ने जाते हैं कि सर पढ़ने में लगे, ध्यान ही नहीं रहा, 3-4 घंटे बायो पढ़ते रहे, तो भैया वो बायो की जो टॉक्सिसिटी हुई है या जो बायो का हाइपर मिनरलाइजेशन हुआ है वो लीड कर रहा है कहीं पर डिफिशिएंसी ऑफ फिजिक्स को या डिफिशिएंसी ऑफ केमिस्ट्री को। आई होप मेरी बातों का मतलब आप समझ रहे होंगे डॉक्टर्स, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सम्यक, समिधा, सायन, श्रेया, श्रुति, श्वेता, सुहानी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. परफेक्ट। तो किसी एक सब्सटेंस या किसी एक मिनरल का एक्सेस किसी दूसरे की डेफिशिएंसी का कारण भी बन सकता है। जीवन का भी यही नियम होता है। कई दफे ऐसा हो जाता है कि पापा ने डांट लगाई, हम मम्मी के पास जाकर छुप जाते हैं, मम्मी प्रोटेक्ट कर लेती है, तो मम्मी का ज्यादा लाड़ प्यार वो टॉक्सिसिटी का काम कर सकता है और किससे दूर कर सकता है, किसकी डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है वो पापा की। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारा जीवन हो या प्लांट हो, सारे मिनरल को एक ऑप्टिमम लेवल पर ही अपटेक करना पड़ेगा रूट को, अदरवाइज एक टॉक्सिक हो सकता है और एक डिफिशिएंसी हो सकती है, दैट में लीड टू एनी सीवियर डिजीज। तो ठीक यहां पर मैंने वैसा ही बनाया है, फंक्शन, डेफिनेशन, टॉक्सिसिटी और रिमार्क। रिमार्क मैंने इसलिए डाल दिया कि हो सकता है कई बार कुछ एक अलग से वर्ड्स आ जाते हैं जिस पर नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक नेक्रोसिस and apoptosis, but we have already discussed these two terms. What is necrosis and apoptosis? Sir, necrosis is unprogrammed cell death, whereas apoptosis is the programmed cell death. क्या हमने ये पढ़ा है स्पंदन या नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। परफेक्ट। सो नेक्रोसिस होती है एक ऐसी डेथ जो अनप्लान्ड हो, अनप्लान्ड हो मतलब अनप्रोग्राम्ड हो, अनप्रोग्राम्ड, और ये होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब सेल का अपना एक प्रोग्रामिंग होगा, सेल रिप्रोड्यूस करेगी, सेल अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी और बाय डिफॉल्ट एजिंग की वजह से सेल की डेथ होगी, दिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बट सडन किसी इंजुरी से एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उसको अपन कहते हैं व्हाट, दैट इज नेक्रोसिस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो हमें रिमार्क में लिखने पड़ सकते हैं। अब रहा सवाल इसको डिस्कस कैसे करना है, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट करवा दे रहा हूं और उतने ही वर्ड्स आपको ध्यान से पढ़ लेने। जस्ट मिनट, शेयरिंग अ पेज। Can you see the screen? Yes, sir. Yes, Perfect. अब यहाँ पर बच्चों आपको जो इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं बट स्टिल समझ सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन सबसे पहले इन्होंने शायद स्टार्टेड विथ नाइट्रोजन, यस, एसेंशियल फंक्शंस ये है उसमें नाइट्रोजन की बात की गई है। तो नाइट्रोजन में सबसे पहले बताया गया है दिस इज द मिनरल एलिमेंट। अभी मैं जहां कहूं वहीं पर हाईलाइट करेंगे आप, बिकॉज ये लर्निंग पार्ट है, इसको समझाने वाली बात कुछ नहीं। ग्रेटेस्ट वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, ग्रेटेस्ट अमाउंट। कैन यू टेल मी व्हाई आई डू सो, व्हाई इट इज इन ग्रेटेस्ट अमाउंट नाइट्रोजन? एनीवन? एनीवन? अरे anyone, why nitrogen is in greatest amount? Sir, it is a Sir, major major constituent of proteins, nucleic acid, vitamins and hormones. तो पढ़ के कोई भी बता देगा भाई। लास्ट की लाइन में लिखा हुआ था दोस्तों, वैसे भी आपको पता होना चाहिए मुक्तित भाई कि नाइट्रोजन बिना प्रोटीन के सेल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes. और बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता। Nitrogen is one of the major constituent of protein, nucleic acid, vitamins and hormones. Therefore, it is the greatest amount present in the plant.
फिर हाईलाइट करेंगे एब्जॉर्ब मेनली एज नाइट्रेट NO3 माइनस, also taken up, highlight, also taken up as nitrite or ammonium salt. Nitrate is major part, then nitrite, then ammonium ion. बस मैक्रोसोमेटिक टिश्यूज में ज्यादा मिलेगा। क्यों मैक्रोसोमेटिक टिश्यूज में ज्यादा मिलेगा? क्योंकि जब तक सेल डिवाइड होनी है तो नाइट्रोजन के बिना तो सेल डिवाइड होगी नहीं, मेम्ब्रेन के बिना तो काम चलेगा नहीं, इसलिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा स्टेट बोर्ड की बुक, आपका मॉड्यूल, जितना मैक्सिमम फंक्शंस आपको मिल जाए उस सारे फंक्शंस आपको उसमें मिले। परफेक्ट। चलिए, तो सेकंड वन इज, एक और कॉलम बच्चों यहाँ पर मुझे लग रहा है इसको देख के बना लेना चाहिए हमने। रिमार्क की जगह आप एब्जॉर्प्शन फॉर्म कर रहे, फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ये भी नीट में आ सकता है क्योंकि सबके बारे में दिया गया है। एज फार एज फॉस्फोरस इज कंसर्न, किस फॉर्म में फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो रहा है? Phosphate ions. Phosphate ions. Phosphate ions, H2PO4 minus और HPO4 double minus. So phosphorus is constituent of cell membrane. एक phosphorus ऐसा था जो सेल मेम्ब्रेन का constituent था, कोई बता सकता है? Phospholipids. Phospholipid in the membrane. Example, phospholipid का example. Lecithin. Very nice, बहुत बढ़िया। न्यूक्लिक एसिड में होगा ही होगा क्योंकि डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होता है, तभी एटीपी बनता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें एब्जॉर्ब हाईलाइट करेंगे आयंस जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम, पोटेशियम भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी हमने एक दिन पहले ही पढ़ा है पोटेशियम के बारे में। absorbed as potassium ion, highlight, absorbed as potassium ion, maintain an anion cation balance in cells, involved in protein synthesis, opening and closing of stomata, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. The maintenance Yes. of the turgidity of cells, highlight करेंगे maintenance of turgidity of cells, opening and closing of stomata, protein synthesis, calcium, calcium की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट है कैल्शियम किसी भी टिश्यू में, सबसे पहले जरूरी है क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्लांट में सेल वॉल होती है एंड सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैल्शियम पैक्टेट। डू यू नो दिस? Yes, Yes, sir. madam. Yes. यस, सब पढ़ा हुआ है, एक्चुअली सब पढ़ा हुआ है। आप सब पढ़ेंगे तो आपको टेबुलेटेड फॉर्म में करना है उसको। इवन स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की, है ना? ओके, उसके बाद मैग्नीशियम की बात करते हैं। टेबल आपको बनाना है बच्चों सब, और सिर्फ इसमें से नहीं बनाना है आपको, मॉड्यूल के बाद आपकी स्टेट बोर्ड की बुक होगी कोई 11th की, स्टेट बोर्ड में जिसने एडमिशन लिया है स्टेट बोर्ड की बुक्स होंगी, जिसने नहीं लिया वो भी ले सकता है स्टेट बोर्ड का बुक, उसको खरीद ले। स्टेट बोर्ड यदि अवेलेबल हो ऑनलाइन तो ऑनलाइन देख लें, उसमें से भी मिला के देख लें, यदि कुछ हो काम का तो मिल जाएगा। मैक्सिमम लिख लेना, मतलब है एट वन गो, हमें इसको बार बार इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत वेटेज वाला चैप्टर नहीं है ये नीट के लिए, लर्न करने वाला चैप्टर। सल्फर, सल्फेट आयंस, सिस्टीन और मिथ्योनिन में ज्यादा होता है सल्फर, और बहुत सारे कोएंजाइम्स, विटामिन्स, इन सब का वो कंपोनेंट है। कोई नया वर्ड यदि आएगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक एसिड, फेरिक आयंस रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये ज्यादा अमाउंट में लगता है। सबसे ज्यादा ग्रेटर, हाँ बोलो, मैग्नीशियम रह गया। क्या रह गया? Magnesium. अच्छा, मैग्नीशियम रह गया। ओके, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ Mg++ आयंस, और Mg की जहां तक जरूरत हो तो आपने कहाँ पढ़ा होगा ये भी बताऊं क्या? आपको क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आएगा। मैग्नीशियम जो होता है बच्चों वो, हाँ पढ़ा है आपने, मैग्नीशियम पढ़ा होगा राइबोसोम की सब यूनिट का अटैचमेंट और डिटैचमेंट, भावना मैडम ने पढ़ाया होगा। Yes, sir. Yes, sir. sir. सो राइबोसोम की जो दो सब यूनिट्स होती हैं उनके अटैचमेंट के लिए, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है, बराबर। और लिखा भी है क्लोरोफिल का मेजर कंपोनेंट है वो, है ना? सल्फर की बात होगी, बात आयरन, आयरन लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है इन कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट,
लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट, सबसे पहला अपन ने देखा था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करता है, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ये सब अभी जब आपको वो पढ़ाया जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लर्न कर लेना है। इट एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम्स essential for the formation of chlorophyll. Understood? Yes, sir. Yes. और उसके बाद जो नीट में पूछा जाने वाला पार्ट है वो है, आई थिंक मेरे हिसाब से ज्यादा पूछा जा सकता है, और वो पार्ट है बोरॉन और कोबाल्ट। शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बट हमें तो सारा ही पढ़ लेना है। ओके, मैंगनीज और जिंक, कंफ्यूजन होता है याद करते समय, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। एक मैंगनीज है, एक मैग्नीशियम है। मैंगनीज की जहां तक बात करते हैं तो मैग्नस आयन है, और मैग्नीशियम भी Mg++ ही था। इज इट? Yes. Yes. Yes, sir. क्योंकि मैंने पहले भी बताया बच्चों की इनकी कोई इतनी फिजियोलॉजी तो होती नहीं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। ले देखिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, तो इसमें मैग्नीज काम करता है। जिंक की बात मैं करूं तो ये जिंक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। अब अपन ने 4 कैटेगरी बनाई थी, एक स्ट्रक्चरल पार्ट था, एक एनर्जी रिलेटेड पार्ट था, एक एक्टिवेटर था, और एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने वाला था। तो इसको भी डिफरेंशिएट अपन ने कर लिया। स्ट्रक्चरल में हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एनर्जी रिलेटेड में मैग्नीशियम और फास्फोरस। एक्टिवेटर और इनहिबिटर मैंने आपको मैंगनीज और जिंक और कॉपर लिखाया था, देखिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर लिखा भी है कॉपर के केस में कि it is associated with the certain enzymes involved in redox reactions and is reversibly oxidized from cuprous or cupric. Perfect. और लास्ट वाला है बोरॉन। बोरॉन के केस में absorbed as BO3 और B4O7 अब देखिए बोरॉन की रिक्वायरमेंट किस लिए थी। बोरॉन अपने लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना भी प्लांट के पास हो, मिट्टी में हो, सॉइल में हो, प्लांट तभी अपटेक कर पाएगा जब बोरॉन की प्रेजेंस होगी। यानी एक का अटैचमेंट दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, एक यदि अपटेक नहीं हुआ या डिफिशिएंट हो गया, बोरॉन की डिफिशिएंसी हो गई, तो किसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी? कैल्शियम। Calcium. मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलॉन्गेशन, ये सारे वर्ड्स ध्यान आएंगे। जब मैं 12th में पॉलन का जर्मिनेशन आपको बताऊंगा तो ये सारे वर्ड्स ध्यान आएंगे। और कोई बहुत ज्यादा महीने नहीं बचे, ठीक 4 महीने में आपका बायो 12th का बायो शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनवरी यूथ डे पर मैं 12th स्टार्ट कर देता हूं, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको तब बच्चों याद आएंगे। एनीवेज, सो मैं समझता हूं कि ये सारा असाइनमेंट आपका ये होगा कि ये टेबल आपको बना के रखना है, दैट विल बी योर असाइनमेंट। क्योंकि इसके बाद है डेफिशिएंसी सिम्टम एंड एसेंशियल एलिमेंट, तो इसमें थोड़ा सा समझाने वाला पार्ट है, टॉक्सिसिटी वाला पार्ट है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। बाकी जो नोट करने वाला पार्ट है आप नोट करके रखेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए बच्चों इतना काफी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूर मुझे आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताना है, बट दैट विल बी हार्डली ऑफ हाफ एन आवर, वो मैं बता दूंगा। और यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी और डिफिशिएंसी में लिखा दूंगा, सो दैट चैप्टर विल बी फिनिश्ड, राइट? एनी डाउट इन टुडेस सेशन? नो सर। No doubt, sir. तो ध्यान रखिए कि ये जो नीट का पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें मेंटोर्स की जिन्होंने सुनी, जिन्होंने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहे, लास्ट मोमेंट तक जो टीचर के कांटेक्ट में रहे, टीचर से कम्युनिकेट करते रहे, एक बहुत अच्छा धुरंधर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पर प्रेशर आएगा, वो बच्चा पिछले 2 महीनों से कोई कांटेक्ट में नहीं था। अप्रोच कर रहे थे कि अच्छा बच्चा है, अच्छा स्कोर लाएगा, अच्छा स्कोर लाएगा। He was not picking up the call. If he was picking, he was not responding. मतलब ठीक है, पेपर का डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं, डीसी क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग मोर देन 650, he stuck at 550। तो बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, आपके टीचर से कम्युनिकेशन गैप यदि आ जाता है तो बहुत इन्फ्लुएंस होगा उसका। सो प्लीज ट्राई टू बी इन कम्युनिकेशन, ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट। कोई समस्या आती है तो टीचर से मिलें, टाइम टेबल के नीचे लिखा हुआ है, उस दिन पर उस टीचर से बात करके उनसे मिलने जरूर जाए। परफेक्ट, चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
Welcome, beta, Thank you, sir. welcome. All the best. Thank you, sir. All the